for non-citizens participating in protests related to the Israel-Palestine conflict. Is this true that the United States of America, who calls themselves the sole custodian of human rights and democracy, is doing this for protesting? What is India's stand on this? Thank you. Honorable Minister. No, Honorable Minister. No, thank you, sir. I give one party. No, sorry. Please. No. Honorable Minister. Sir, a number of... No. number- Honorable Minister. Yes, sir. Only Honorable Minister. Please go ahead. A number of members raised issues which you pointed out were repetitive. So I will answer issue by issue. Okay. In some cases, it will reply to multiple members. Okay. So the first issue which was raised by Mr. Surjewala, he said, do you know that 104 people were brought back yesterday? Of course we know. We were the people who verified the nationality. We were the people who gave the aircraft clearance for the flight to know. So yes, I know 104 people came back in 2014. I also know that 5 to 7 times that number came back in 2009, 10, 11, 12, 13, 14. So let us not make out as though this is something which is a new issue. This is an issue which was happening earlier. Second issue, sir. Many people ask me, where do we have consular access to these 104 or others who are in detention? In many cases, sir, consular access, embassy would like to have consular access to any Indian national. But that national has to request consular access. In many cases, they have not requested, so we were not aware. But in every case, we have obtained passport details, we have checked the verification, we have ensured that they are Indians, and we have had contacts to ensure that that is the case. Then, sir, there is the next issue. After their return, are we making an effort, which Honorable Member Tirchi Siva asked? Are we making an effort? Yes. In fact, that is why the authorities have been given instructions, and I would urge Honorable Member Sanjay Singh not to misrepresent that instruction. They have been given instruction to sit with every one of the returnees, find out how did they go to America, who was the agent, how did this illegal industry happen, how can we take precautions so that this does not continue. We have been very, I would say, sir, sympathetic and solicitous to the predicament of people going. So I do not want the House or the public to have a wrong understanding of how they were received. They have come through a very difficult experience. They were misled by agents. I will come to the action issue after this. Then the question, sir, I think one member raised saying, the numbers went up after 2016. Sir, I was very bureaucratically correct. I took a single source. Sir, what is meant by bureaucratically correct? Which means I followed the bureaucratic database to ensure that I gave before the House a very similar comparable number from the same database. So, sir, as a healthy practice, let everyone follow the bureaucratic practice. Yes, sir. Go ahead. Now, sir, what I do want to say, actually, if one looks at the Homeland Security data, sir, the Homeland Security, the American Homeland Security Department has a report about aliens removed by criminal status and country of nationality. For India, actually that number is I'm 860. shocked. I allowed indulgence. No, what is this? You are not listening to the Honorable Minister. No, I'm so sorry. Please. Honorable Minister. Yes, sir. I'll be careful next time. Sir, I'll be careful next time. uh, Take your seat. sir, the Honorable Minister. Homeland Security Department data actually shows prior to 2014, the numbers, their numbers, American numbers were actually close to 1,000. The numbers I have given, sir, as can be seen in the statement, are from the Bureau of Immigration. In many cases, possibly
because if they were not issued emergency certificates, they may have been treated differently. Maybe they went to the points about which year was a little higher than which year. Then, sir, the issue came about military aircraft being sent. Now, some other members also raised, have military aircraft been sent before? The procedure, sir, is we have looked at deportations for the last 15 years. It is up to the authority of the Immigration Authority to charter an aircraft. It could be a military aircraft, but whichever aircraft comes in, it is under the authority of the ICE. The procedure, whether it was a military aircraft, whether it was a chartered aircraft, was exactly the same. Then the issue came up, sir, was there advance notice given? So, the Only what the minister says goes on record. Please go ahead. advance notice was given. The advance notice was given, and there was consular access done. We had checked all the procedures. Then, sir, the issue was raised, do they have property? We are not aware that they have property, but if they have anything, we will be responsive to that. We do not, sir, have data on illegal immigrants, and the issue about student visas being cancelled does not apply to immigrants. Thank you, sir. Beautiful. Shri, well, all we can say about the statement of the Honorable Minister is, he has been very comprehensive and responded to all issues raised. Shri Abdul Wahab, 5 minutes, not present. Shri Ramji, Sanjeev, okay, you are there? I missed you. Shri Sanjeev Arora will resume to make his address for next 3 minutes. Sir, 3 minutes. when my point was interrupted, I was at out-of-pocket expense, which I have already taken care of, and I have mentioned quite a bit that we are on a very higher side as far as out-of-pocket expenses are concerned in our country. Now, sir, coming next on AIMS, there have been 23 new AIMS hospitals, but there is a shortage of faculty of 40%, almost 40% in these AIMS, and also non-faculty positions are around 30% less in AIMS. So my request is that if the budget is increased, we can afford to pay them more and get this get more professors, faculty and non-faculty positions for our hospitals. Sir, now coming to regulations on private hospitals. Sir, private hospitals charge arbitrarily across states for one reason, that there is no control over the charges being charged by them. Consumables and diagnostic tests overpriced due to lack of price standardization. Also, it is observed that even after setting ceiling prices in some cases like stents, knee replacements, the hospital charges are increased, so it comes to same. I'll give you an example, sir. I have bills. One is from a corporate hospital and one is from open market. From the open market, the same thing is available for 64 rupees, whereas
The same is available in institutional hospital for more than 300 rupees. Because, sir, once you are admitted, you are a IPD patient. Now they may charge anything. There is no one to control. अब आप ये तो कह नहीं सकते कि मैं ग्लव्स बाहर से लाऊंगा, ये आप कह नहीं सकते कि मैं टेस्ट कराने बाहर जाऊंगा. तो जो भी कराना पड़ेगा, जो वो हॉस्पिटल कर रहा है वो करता है. करें, ठीक है, बट कोई तो कंट्रोल होना चाहिए. सारे स्टेक होल्डर्स को लेके इनटू अकाउंट देयर शुड बी सम कंट्रोल रिगार्डिंग दिस. And sir, next ESI. Sir, at presently under ESI 21,000 rupees who get are covered, and this has been going for long. So my request to government, through you to government, is to increase this limit so that more and more workers are covered under ESI and they can get affordable health treatment. And now, sir, coming to professionals, we were just discussing medical education and our students going abroad. Sir, we have 109,000 UG seats in India, the undergraduate MBBS seats, whereas PG we have only 70,000. Which means that after UG, most of the doctors who finish MBBS, they are going abroad, because hardly you see these days MBBS doctors. Any doctor who is practicing has MD on them. So this brain drain somehow needs to be stopped, and we are already in shortage, even in AIIMS hospital, where government can afford to pay doctors more, which I have brought up before. And also, sir, there needs to be a stricter law on unethical practices. Now, let me give you an example, sir. The cesarean cases, WHO has recommended that it should be 15%. No more than 15% on an average cesarean cases should be there. In our country, in some states, it's more than 50%, sir. So unethical practices should be stopped, and commercial motives should be. And also, there needs to be some health insurance norms where GST point has already been brought, needs to be taken out of health insurance, because even compared to other countries, the percentage of people insured in our country are very minimal. Now, sir, before I end I would like to call upon the government to take the following steps: increase healthcare expenditure at least to 2.5% of GDP, if not 5%, which has been recommended by State Bank of India recently. Regulate private healthcare pricing, revise ESI/EC wage ceilings, strengthen AIIMS faculty and public health infrastructure, expand insurance coverage for vulnerable population and currently uninsured missing middle class, curb unethical medical practices. Thank you. Thank you, Manya Sanjeev ji. Manya Shri Abdul Wahab ji. Thank you, sir. First of all, I rise to oppose this motion of thanks. There is a general sentiment here and abroad. This parliamentary democracy is getting diluted. And not just like before, I am here since 2004. It was not gradually, but now it is very in the high speed mode. Our functions are in parliament. An opposition delayed is the democracy denied. That is the caption now, especially in India. It is nowadays hearing. I raise my serious concern and protest on behalf of my party, the way the government has formed joint parliamentary committee. They have not included me. That is one problem. Nobody from my party. But now I think it was better decision by the government. I am not there because whoever went all over India, nothing. All the opposition members, whatever they mentioned, it is in the waste basket. Nothing is considered. Only our chairman decided only for the members, those who are from the ruling party. They made some suggestions. And No comment on Honorable Chairman as per was. Excuse me?
Yeah, this part of that. But how many things are discussed here? You are also here. So, and again, our foreign minister is here, so that it's a very rare chance to get me. Next month or whenever June, the PM is going to America. February itself. Next, within one night, he is not listening. But anyway, I request our foreign minister just to give some, not instructions, some suggestions to PM to raise this issue what was here 1 hour before, 15 minutes before. There are so many other illegal immigrants there in not only in America but different places. They will even in UAE. I am feared that they will also start using their what you call helicopters or whatever it is. Even though it is only 3 minutes, there are three these. And one thing I have to remind on the government is the Worship Act 1991. It is not at all, it's a verdict from the Supreme Court. But the local courts, you see, judicial overriding on this act, Varanasi lower court in Gyanvati Masjid and Allahabad court in Sambal Mosque is highly condemnable and questions the integrity of our judiciary. The recent claim and controversy over the Ajmer Dargah, which has a history of 600 plus years, should be called out loud and should be strictly punished. I urge the government, the judiciary to strengthen this act. And lot of other things are also happening nowadays, especially in budget Kerala. Totally ignored. I can only hear one voice from our chairman's state Bihar. No single one word about Kerala. Forget about Kerala. What about Wayanad? The Prime Minister came there and assured the rehabilitation and all. So far in the budget or otherwise, nothing is granted. It is a grave concern for us. Our government, Kerala government, they are also suppressing the Keralites, and you also start suppressing the government. What we will do? They are not giving enough facilities. They are taken money from wherever, and the money what they got in exchequer is not spending. They are finding so many excuses. 700 crore project is there, but state government also, central government also, they are not coming to the Wayanad issue. Maybe because if it is Wayanad is Priyanka Gandhi's constituency, I don't know. This is happening in Kerala and in center. I urge the government not looking to the Kerala government, please allow some more money for the rehabilitation of the Wayanad or whatever you call that land perhaps. Thank you very much, sir. And I wish that this time you are not interfering in my speech. Thank you very much. I never interfere. I only remind after No. completing your time. You will start Please. from 4 minutes. Please. No. Okay. Never. No, okay. Thank you. माननीय श्री बाबूराम निषाद, माननीय बाबूराम निषाद नॉट प्रेजेंट, माननीय श्री अमरपाल मौर्य, माननीय अमरपाल मौर्य। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय देने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में देश के उस अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्तियों के विषय में उन्होंने चर्चा किया और कहा भी कि सार्थक विकास तभी होता है जब देश के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ उनको प्राप्त होता है। और उसी भावना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की कल्पना में कहा, जिसके प्रति हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार संकल्पित है। महोदय, गरीब को जब गरिमापूर्ण जीवन मिलता है तो उसके जीवन में जीने की जो कला है, जो उसका जीवन है, उसके अंदर एक गौरव और आत्मसम्मान का भाव बढ़ जाता है, जिसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तभी उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं पर
काम करना प्रारंभ किया। किसान का बेटा हूं महोदय, मैंने जीवन में गरीबी को अपनी आंखों से देखा है महोदय, देखा ही नहीं, उसको हमने जिया है। और जब देश के ऐसे ऐसे राजनीति क्षेत्र के लोगों ने, जब देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों की योजनाओं को चलाने का काम किया, उन तक घर देने का काम किया, तो उनका उन्होंने मजाक उड़ाया। महोदय, हमने गरीबी के जीवन में, जब एक व्यक्ति के घर पर छप्पर होता था, जब वर्षा आती थी तो रात भर वो जो है एक कोने में बैठ करके सारी रात अपनी जो है वो गुजारता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब उनको पक्के मकान दिए तो इसी पार्लियामेंट उड़ाने का काम किया। इन गरीबों का मजाक, उनको मकान मिलने पर इनको खुशी नहीं हुई, उनको शौचालय मिलने पर इनको खुशी नहीं प्राप्त होती है। मैं तो बचपन में सुनता था महोदय, जब देश की आजादी के बाद रोटी कपड़ा और मकान, खुशहाल रहेगा हिंदुस्तान, ये हमने सुनते आए अपने आंखों से। लेकिन न रोटी मिली, न कपड़ा मिला, न मकान मिला। महोदय, जब देश की आजादी के बाद जब 60 साल एक परिवार के लोग राज करते रहे और इस प्रकार का नारा लगाते रहे, तो क्या उनको इस देश के जो है पार्लियामेंट के अंदर बैठने का अधिकार था, या गरीबों का मजाक उड़ाने का अधिकार उनको किसने दिया? महोदय, ये गरीबी और अमीरी में हमेशा भेद करते रहे हैं। देश के अंदर तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने, कबीर जी ने कहा है, कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। महोदय, ये भेद किसने पैदा किया? ये भेद इस देश के अंदर, देश की आजादी के बाद सत्ता पर बैठे हुए जो लोग थे, एक परिवार के लोग जो शासन करने वाले थे, उन्होंने गरीबी और अमीरी का भेद पैदा किया। उस भेद का मिटाने का काम अगर किसी ने संकल्प के साथ पूरा किया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये ऐसे भारत के देश के प्रधानमंत्री हैं महोदय। और अंबेडकर जी ने तो हमको जो है कहा, और देश का जो है संविधान सौंपते हुए 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान सौंपते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं समझता हूं कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हो, और एक संविधान चाहे जितना बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है जब उसका पालन करने वाले लोग अच्छे होते हैं। महोदय, देश की आजादी के बाद जिस संविधान का जो है लेकर के दुनिया में जो है घूमने का काम करते हैं, ढोंग रचने का काम करते हैं, उस संविधान की मर्यादा को तार तार करने का काम अगर किसी ने किया है तो विपक्ष की सरकारों ने किया है। और महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, समय खत्म। मैं एक बात में अपनी कह करके समाप्त करूंगा महोदय, हमारे यहाँ पर बैठे हुए विपक्ष के नेता हमारी संस्कृति पर आलोचना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि संत समागम जो है स्नान किसके साथ करेगा? क्या ये तय करेंगे कि भारत की संस्कृति कांग्रेस चलाएंगे? ये कांग्रेस के लोग भारत की संस्कृति को चलाने वाले नहीं है, भारत की संस्कृति को बदनाम करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। माननीय श्री राम जी, माननीय श्री राम। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा में बोलने का अवसर दिया, और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी के मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के प्रेम्बल में ही जस्टिस की बात करी, लिबर्टी की बात करी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात की, और यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अपनी स्पीच में एक वार्निंग भी दिया। On the 26th January 1950, we are going to enter into a life of contradiction. In politics, we will have the equality, and in social and economic life, we will have the inequality. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny
the principle of one man, one value. How long shall we continue deny this life of contradiction? How long shall we continue deny equality in our social and economic life? If we continue deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment. इसके बावजूद भी मान्यवर देश में सरकारें कई आई, कई गई, लेकिन SC ST OBC को आज तक पूरी तरह से सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय आज तक नहीं मिला। और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संवैधानिक अधिकारों की बदौलत इन कमजोर वर्गों को जो भी मिला उसे भी खत्म करना चाहती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने SC ST OBC को सामाजिक और आर्थिक बराबरी दिलाने के लिए शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन का अधिकार दिया। और आज मान्यवर तमाम सरकारें, पहले की भी और अभी भी, आज सारे सरकारी उपक्रमों में, सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भर्ती की जा रही हैं, जिसमें किसी तरह का रिजर्वेशन फॉलो नहीं किया जा रहा। मान्यवर, अगर देश के लोग जॉब नहीं करेंगे, नौकरी नहीं पाएंगे, तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। वही हालात होगा जिस तरह से अमेरिका के अंदर हमें वापस भेज रहे हैं कैदी बना करके। मान्यवर, मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ, लेकिन मान्यवर सरकार कमजोर वर्ग की शिक्षा को लेकर भी जरा गंभीर नहीं है। इससे पहले भी नहीं थी और ये सरकार भी गंभीर नहीं है। सरकार के पास आंकड़े हैं कि भारत की 30% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। अभी हाल ही में सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 14 लाख बच्चे देश के अंदर आउट ऑफ स्कूल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे 7,84,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के अंदर भी हैं। लगभग देश में 20% बच्चे और बच्चियां गरीबी और अन्य कारणों की वजह से ड्रॉप आउट करते हैं, उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही। लेकिन सरकार अभी तक देश के अंदर इन गरीब बच्चों की शिक्षा को फ्री नहीं कर पाई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जो हमारे बहन की सरकार थी, देश के अंदर पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश, जहां पर गरीबों की शिक्षा को फ्री किया गया। किसी भी तरह की शिक्षा लें, पूरी तरह से फ्री थी। मान्यवर SC ST कमजोर वर्ग के प्रति सरकार कमजोर इच्छा शक्ति की वजह से पूरे देश में दलितों व आदिवासी पर अत्याचार और दलित बच्चियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन देश में कहीं ना कहीं इस तरह के अत्याचार दिखाई पड़ते हैं और इसके बाद अपराधियों को सजा तक नहीं मिलती। परिवार के अधिकांश मामलों में न्याय तक नहीं मिलता। दबंगों और अपराधियों की राजनीतिक ऊंची पैठ पुलिस पर दबाव बनाकर केस को रफा दफा किया जाता है और कई मामलों में पुलिस रिपोर्ट भी कमजोर लगाती है। यहाँ तक कि कोई हिम्मत करता है अन्याय के खिलाफ लड़ने की, तो मान्यवर उसके ऊपर कहर बरपाए जाने का काम भी किया जाता है। मान्यवर, इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। इसका एग्जाम्पल मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का अंजना अहिरवार, जिसके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट किया गया, उसने उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। 9 महीने के अंदर परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई और आखिर में इस बच्ची को भी संघर्ष करते करते अपनी जान गंवानी पड़ गई। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों को रोकने की जरूरत है। ये देश के लिए कलंक है। मान्यवर, मैं इसी बात को लेकर लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं। पूरे देश में बाबा साहब की प्रतिमा और उनके संविधान को लेकर के कुछ मनवादी मानसिकता के लोग उसे क्षतिग्रस्त करते हैं। अभी हाल ही में खुलेआम पंजाब में देखने को मिला। मान्यवर, मनवादी मानसिकता के लोगों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बाबा साहब और संविधान को मानने वाले लोग अपनी जान देकर बाबा साहब के संविधान और सम्मान में कोई आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे भगवान जैसे नहीं, भगवान ही है। हम अपने भगवान और संविधान की पूजा करते हैं और संविधान हमारा पवित्र ग्रंथ है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। श्री लहर सिंह सिरोया। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान किया आपने। यह बहुत गर्व की बात है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं। वे लोकतंत्र की उस सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार करते रहते हैं। यह तथ्य है कि वे हमारे देश में सबसे ऊंचे पद पर आसीन होने के लिए एक साधारण पृष्ठभूमि से आई हैं। हमारे लोकतंत्र की जीवंतता के बारे में बहुत कुछ बताता है। उनकी बुद्धिमत्ता और शालीनता के ने उनके द्वारा ग्रहण किए उस उच्च पद को परिभाषित किया है, उसकी गरिमा बढ़ाई है। लेकिन मैं देखता हूं कुछ लोग जो अभिजाति वर्ग से आते हैं, वंशवादी परंपरा से जीते हैं,
और जो केवल हमारे लोकतंत्र में हेराफेरी करने और उस पर कब्जा करने के लिए नए नए तरीके सोचते रहते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी के बारे में कुछ भी कहें, चाहे वे उनके प्रति अनादर और असहिष्णुता दिखाने के लिए कितने भी नए मुहावरों का इस्तेमाल करें, वे आज और भविष्य में भी लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशा की किरण रहेगी, प्रकाश स्तंभ के समान रहेगी। मान्यवर राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए कानून के साथ हो रही प्रगति के बारे में उल्लेख किया है। मैं हमारी एनडीए सरकार द्वारा उठाए गए इस महान कदम का स्वागत करता हूं। इससे न केवल देश का समय और बहुमूल्य संसाधन बचेंगे, बल्कि लगातार निरंतर विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में हमारे को मदद मिलेगी। इस महान विचार में सरकार के विचार के लिए एक और पूर्व विचार जोड़ना चाहूंगा। जैसा कि अभी राजीव शुक्ला जी भी व्यक्त कर रहे थे, अपनी चिंताएं प्रकट कर रहे थे, उसी को जोड़ते हुए हमारा चुनाव प्रणाली बहुत महंगी हो चुकी है। हमारी बहुत महंगी चुनाव प्रणाली को साफ करने के लिए, इससे काले धन से मुक्त कराने के लिए और कुछ अमीर लोगों के चंगुल से मुक्त करने के लिए चुनाव के लिए राज्य द्वारा स्टेट फंडिंग पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यह कोई नया विचार नहीं है, इस पर पहले भी बहस हो चुकी है। ये एक ऐसा विचार है जिसे कभी भी खारिज नहीं किया गया है, लेकिन किसी ने इसे आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प भी नहीं दिखाया। अब समय आ गया है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सोचें। इस प्रतिष्ठित सदन में, इस महान सदन में और दूसरे सदन में भी हर कोई इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि हमारे चुनाव कितने महंगे होते जा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कैंपेन में चुनाव तो नहीं लड़ रहा, लेकिन चुनाव के कार्यों से जुड़ा रहा हूं और हम सब जानते हैं कि चुनाव में धन कैसे आया जा रहा है, कैसे खर्च किया जा रहा है। एक ऐसा रहस्य जो सबको मालूम है, आप तो लेकिन उसको खूब जानते हैं, लेकिन सब कोई इससे एक्नॉलेज नहीं करना चाहता। आज आप देखेंगे पंचायत के चुनाव में भी, नगर पालिका परिषद के पार्षद के चुनाव में भी लाखों करोड़ों का बजट होने लग गया है। और मैं तो ऐसी कंस्टिट्यूंसी जानता हूं जो एक एमएलए कंस्टिट्यूंसी में 3 उम्मीदवारों ने 100 करोड़ से प्लस खर्च किया है। तो ऐसे समय में मैं हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर खतरा बन गया है। ये अच्छे लोगों को राजनीतिक और सार्वजनिक सेवा में आने से रोकेगा। इसमें कई नेता इस बारे में चिंता प्रकट कर चुके हैं और मैं समझता हूं कि हमें से कई नेता तो चुनाव लड़ने के काबिल रहेंगे। और नए नए लोग, जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है 1 लाख नए लोगों को राजनीति में लाने का, तो मैं समझता हूं कि अगर स्टेट फंडिंग नहीं होती है, नए लोग आ ही नहीं सकेंगे। हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर खतरा। ये अच्छे लोगों को राजनीति में और सार्वजनिक सेवा में आने से रोकेगा। अच्छे लोगों के लिए राजनीति में प्रवेश करने के लिए पैसा सबसे बड़ी बाधा बन गया है, रुकावट बन गया है। चुनाव पर खर्च पर अंकुश लगाने के लिए नियम चाहे कितने भी कड़े क्यों न हो, कभी कारगर नहीं हुए। नियमों का उल्लंघन अधिक हुआ है। इसलिए चुनाव के लिए राज्य द्वारा स्टेट फंडिंग करना हमारे सामने एकमात्र समाधान हो सकता है। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, न कोई बड़ा वकील हूँ, न कोई मैं पब्लिक पॉलिसी के बारे में ज्यादा जानता हूँ, लेकिन इस महान सदन में और सदन के बाहर भी इस सदन के बाहर भी काफी लोग हैं जो इस बारे में रोशनी डाल सकते हैं। और मैं ईमानदारी से सरकार से एक समिति गठित करने पर विचार करने का आग्रह करता हूं कि इस विचार को आगे बढ़ाने में हम अपने बारे में समयबद्ध रिपोर्ट देगी। मुझे पूरा यकीन है कि सभी दल इस कदम का स्वागत करेंगे और यह कदम हम भारत के लोगों से सम्मान भी दिलाएगा। अतीत में कई समितियां इस आइडिया पर विचार कर चुकी हैं, जैसे कि दिनेश गोस्वामी समिति, आदरणीय स्वर्गीय इंद्रजीत गुप्ता समिति और 1999 विधि आयोग ने इस पर चर्चा की। 1 मिनट हो सकता है कि अन्य समितियां भी रही हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हर समिति ने इस विचार के बारे में सकारात्मक अनुशंसा की है। जब इन समितियों ने इस विचार पर विमर्श किया
तो हमारे चुनाव पर खर्च होने वाला धन अपेक्षाकृत कम था, अब तो बहुत अधिक हो गया है और कहीं अधिक हो गया है और विस्फोटक स्थिति आ गई है। इसलिए मैं सरकार से पुनः ईमानदारी से आग्रह करता हूं कि वह हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए इस सुझाव पर विचार करें और ऐतिहासिक एक राष्ट्र एक चुनाव कानून के पूरक रूप में देखें। और मैं समझता हूँ पूरे सदन का और सब पार्टियों को इसमें सहयोग मिलेगा, क्योंकि सब पार्टियां इस चुनाव के खर्चों से चिंतित है, पीड़ित हैं और उम्मीदवार भी इस बात से चिंतित हैं। मैं समझता हूँ इस सरकार इसका संज्ञान लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने महिलाओं से ध्यान रखते हैं। धन्यवाद शिवराज साहब। डॉक्टर दिनेश शर्मा, श्री डॉक्टर दिनेश शर्मा उपस्थित नहीं है। श्रीमती जया बच्चन जी, थैंक यू सर। राष्ट्रपति जी के भाषण पर उनको धन्यवाद देने का मौका आपने मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं कुंभ मेला में जो गए और लौट कर नहीं आए उनके प्रति श्रद्धांजलि बताना चाहती हूँ। सर, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में सबसे पहले महिलाओं के शक्तिकरण के बारे में बात की है। बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत गर्व होता है कि इस देश की फर्स्ट सिटीजन जो है वो महिला है। इस देश की वित्त मंत्री महिला है। इस देश में ऐसा एक स्टेट है जो बहुत जागरूक है, उसकी चीफ मिनिस्टर महिला है। इस देश के इतने बड़े नेशनल पार्टी की बहुत ही सीनियर मेंबर महिला है। और हम सब महिलाएं जो यहाँ बैठे हैं उन सब पर मुझे बहुत गर्व होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये किस तरह से कितने संघर्ष के बाद यहाँ आके पहुंची। सर, मगर क्या होता है कि हर महिला के साथ व्यवहार जो है वो एक जैसा नहीं होता है। जैसे कल उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में महिलाएं जब लाइन में खड़ी थी, उनके बुर्के को उठा के उनका आइडेंटिफिकेशन देखा जा रहा था। दिस इज एब्सोल्यूट ब्रीच, इट्स एब्सोल्यूट ब्रीच ऑफ पर्सनल। कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें। और यही बात कल दिल्ली में भी हुई सर। तो जो बुर्का नहीं पहनी है उनके लिए कोई जांच नहीं। अगर बुर्का आपने पहन लिया तो उठा के देखा जाएगा कि आप महिला हैं या नहीं हैं। कृपया शांत रहे, उनको अपनी बात करने का हक है, उनको अपनी बात करने दीजिए। सर, सबर नहीं है। मेरे परिवार में जहां मैं पैदा हुई, हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी। मेरी शादी जहां हुई वहां बहन कोई नहीं है, मगर वहां महिलाओं का सम्मान बराबर दिया गया, जिस वजह से आज मैं यहाँ। मेरी पहली संतान लड़की है, मेरी पहली नाती लड़की है, मेरी पहली पोती लड़की है। तभी मैं समझ सकती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि संभालने वाली महिलाएं अब आने लगी। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हुई हैं उनकी तरफ से मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों का सहमत हो तो। मैं आपके अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूं, मैं आपको अपनी तरह समझ के बोल रही हूं। कुछ दिन पहले एक टिप्पणी किया गया, यू मे बी। सर, इट इज नॉट मी। वी विमेन, वी आर नॉट मे बी, वी आर। इस तरह की टिप्पणी किसी औरत के ऊपर करना बहुत गलत बात है, चाहे वो किसी भी पार्टी की। बस 2 लाइन बच्चन जी की है, जो हमेशा कहा करते थे। मैं हम जितनी महिलाएं यहाँ बैठे हैं उनकी तरफ से कहना चाहूंगी,
ये मत पूछिएगा कि किस वक्त कहा था और कब लिखा था। उनसे कालखंड में बोला गया था, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था? हमें मशहूर होने का शौक नहीं, हमें मशहूर होने का शौक नहीं। आप सब मर्द हमें जानते हैं, ये हमारे लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्री भट्टाचार्य जी राजीव, श्री भट्टाचार्य जी। माननीय सभापति उपसभापति महोदय, हमारा महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर मेरे को बोलने का मौका दिया है, मैं इसलिए आपसे आभार प्रकट करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी का मैं अभिवादन करता हूं कि आज इन्होंने जो भाषण में कहा है वो हमारा देश का जो संकल्प है विकसित भारत, वो हम लोगों को इनका भाषण के माध्यम से हमारा देश की आम जनता के सामने रखा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने नारा दिया सबके साथ सबका विकास। जो हमारा जो राष्ट्रपति का जो भाषण है इसमें उभर के आया है कि हमारा जो नारा है सबका साथ सबका विकास, समाज की हर वर्ग को जोड़ने का जो काम हमें देखने में मिलता है, वो मोदी जी के जो स्लोगन है इसमें हम लोगों को देखना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति की भाषण में उभर के आया है जैसे गरीबी। हम लोग बहुत आफ्टर डेमोक्रेसी के बाद हम लोग सुनते आ रहे हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन दुख की बात है कि गरीब तो नहीं हटा, इन लोग खुद हट गया और मोदी जी को काम करने का मौका दिया गया है। आज देश के प्रधानमंत्री हम लोग गर्व के साथ बोल सकते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जो गरीबों का उन्हें जो काम खुद का काम किया है, उस स्लोगन में विश्वास नहीं करते कि गरीबी हटाऊंगा, वो काम करके दिखाया है। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं मेरा देश के प्रधानमंत्री आज 12 करोड़ भारतवर्ष में 12 करोड़ जगहों में शौचागार, जो हमारा लज्जा होता था, दुख की बात है आफ्टर डेमोक्रेसी के बाद 75 वर्ष हो गया और गरीब के लिए शौचालय नहीं बना। ये आत्मसम्मान की बात है। मोदी जी ने नारा लिया और 12 करोड़ शौचालय हमारा प्रधानमंत्री ने बनाया। देश की मां की, आप वुमेन एम्पावर की बात करते हैं हम लोग, जो महिला है, गरीब महिला है, जो चूल्हा चक्की में हमारा खाना पकाती थी, उनके बहुत सारा रोगों में जंजीरा लेता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस गरीब महिला के लिए सारे भारतवर्ष में 10 करोड़ महिला के लिए जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला ज्योति योजना के अंदर फ्री एलपीजी कनेक्शन देने का काम हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सौभाग्यशाली है, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना पीरियड से अभी तक 80 करोड़ देशवासियों के लिए फ्री राशन का व्यवस्था हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम जानते हैं सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन, गरीबों के लिए जो मसीहा बन के ये काम हमारा देश का प्रधानमंत्री किया है। मैं उत्तर पूर्वांचल से मैं ताल्लुक रखती हूँ, नॉर्थ ईस्ट से ताल्लुक रखती हूँ। आप सोच भी नहीं सकते हैं, मैं त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य से मैं ताल्लुक रखता हूँ। आफ्टर डेमोक्रेसी के बाद, डेवलपमेंट की बात उधर हो ही नहीं सकते थे। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ
मोदी जी है तो मुमकिन है। और मोदी जी ने हमारा इस त्रिपुरा छोटा राज्य में भी आज गरीब के पास प्रधानमंत्री आवास योजना, पक्का घर 4.5 लाख 4,50,000 लोगों को गरीब का मुफ्त में घर, पक्का घर मिलने का काम मोदी जी ने किया है। माननीय सभापति महोदय, आज हेल्थ की इशू में बात कर रहे थे। स्वास्थ्य हमारा जो संविधान में मौलिक अधिकार है, ये स्वास्थ्य में हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारा योगदान दिया है। आज स्वास्थ्य मिशन की आयुष्मान 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापना मोदी जी ने किया है। बहुत सारा, जैसे आज देश के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं, गरीब हैं, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपया, जो बीमार होते थे, गरीब है, इन लोगों को 5 लाख रुपया तक ट्रीटमेंट का काम जिम्मेदारी अपने कंधों पर देश के प्रधानमंत्री लिया है। मैं गर्व के साथ इनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज देश के अंदर एक बहुत बड़ा समस्या है, वो है टीबी मुक्त भारत। ये नारा देके हमारा देश का प्रधानमंत्री काम शुरू किया है। मैं आशा करती हूँ जे अगले कुछ वर्ष में ये टीबी मुक्त भारत हमारा हो जाएगा। इसका भी जिक्र माननीय राष्ट्रपति की भाषण में किया है। मैं आज किसान अन्नदाता मैं देखता हूँ, कुछ जगहों में अन्नदाताओं के लेके हंसी मजाक होता है। मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमारा किसान के लिए काम किया है, किसान पहले मैदान छोड़ के रास्ते में आके आंदोलन करता था। आज मोदी जी के नेतृत्व में आज किसान वो रास्ता छोड़ के मैदान में काम करने का अवसर मिला है, क्योंकि वो जानता है मोदी जी है, एमएसपी है और हमको सुविधा मिलेगा। मोदी जी हमको ये सुविधा दिया है। मैं एक छोटा सा पहले बोला था, छोटा सा राज्य त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ। उधर डेमोक्रेसी के बाद कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने शासन किया। उधर त्रिपुरा में कृषक ने हम लोग देखा है, उधर से मार्च में उठ के रास्ते में आंदोलन में आया था। लेकिन आज त्रिपुरा सरकार ने भी एमएसपी रेट से उनका धान खरीदने का काम त्रिपुरा सरकार ने स्टार्ट किया है। और किसान सब आज त्रिपुरा स्वयं संपूर्ण होने का काम त्रिपुरा ने दिखा दिया है, जे कृषि में कैसा होता है। हम लोग देखा है कि आज किसान क्रेडिट कार्ड, मैडम स्पीच है, कृपया। और जैसे हमारा आज हमारा खरीफ मौसम, यह सब कुछ जगहों में कृषि में डेवलपमेंट का काम हमारा मोदी सरकार ने किया है। इसके तहत आज भारत वर्ष में अन्नदाताओं का जो काम है, उनका जो मिलने वाला है, मोदी जी ने किया है। मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, ये नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेसी के बाद नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी राज किया है, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट को कभी पूछता नहीं। मोदी जी आने के बाद ये उत्तर पूर्वांचल के लिए जो अलग से अष्टलक्ष्मी या इनका डेवलपमेंट, वो आज मोदी जी का माध्यम से हम लोग देखने को मिलता है। मैं त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ। उधर कांग्रेस और कम्युनिस्ट का शासन था। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मोदी जी को। मोदी जी त्रिपुरा को बोला है हीरा बना के दूंगा, और मोदी जी ने कमिटमेंट रखा है। हाईवे, रेलवे, एयरवे कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, आज त्रिपुरा इतना डेवलप, इतना तरक्की कर गया, ये एकमात्र मोदी जी है तो मुमकिन है कि करके दिखाया। आज उत्तर पूर्वांचल में सबसे बड़ा एयरपोर्ट त्रिपुरा अगरतला विमानबंदर, जहां हमारा महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक के नाम पर ये समर्पित किया है। आज त्रिपुरा के अंदर कोई ब्रॉडगेज कनेक्टिविटी नहीं थे,
2014 में मोदी जी सरकार में आया और 2 साल में, ओनली 2 साल, 2016 में त्रिपुरा में पहली बार ब्रॉडगेज कनेक्टिविटी हुआ। मोदी जी है तो मुमकिन है ये करके दिखाया। हमारा पास सिर्फ एक ही लाइफलाइन था, एक ही नेशनल हाईवे आसाम अगरतला जातीय सड़क। आज मोदी जी की कारण 9 नेशनल हाईवे का काम मोदी जी ने हमको करके दिखाया। ये हमारा उत्तर पूर्वांचल, आज जो हम लोग जानते हैं, ये उत्तर पूर्वांचल में आज पहली बार अष्टलक्ष्मी का महोत्सव आज दिल्ली में मनाया, जो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। इससे हम प्रेरित हुए हैं, हम भाग्यशाली है। ये त्रिपुरा या नॉर्थ ईस्ट, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, ये अष्टलक्ष्मी का जो पहचान है वो आज सारे भारतवर्ष में, सारे इंडिया, सारे वर्ल्ड में ये अष्टलक्ष्मी का पहचान का काम मोदी जी ने किया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा भाई माननीय। मैं जनजाति क्षेत्रों से आता हूँ, मेरा इधर जनजाति क्षेत्र है। आज तक जनजाति क्षेत्रों में डेवलपमेंट का काम कोई किसी ने नहीं किया है। मैं भाग्यशाली हूँ, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारा जनजाति विकास के लिए मोदी जी ने काम किया है। आज देश भर में एकलव्य विद्यालय जो जनजातियों का स्टूडेंट का विकास के लिए मोदी जी ने काम किया है। आज में 30 मेडिकल कॉलेज, 10 साल में 30 मेडिकल कॉलेज ट्राइबल इलाकों में करने का काम मोदी जी ने किया है। आज मुद्रा योजना में जो युवा है 10 लाख से 20 लाख कर दिया है। आज देश का बांग्ला भाषा, मैं गर्व के साथ बताता हूँ, मैं बांग्ला भाषी हूँ, मेरा मातृभाषा बांग्ला भाषा है। मैं हमार मातृभाषा बांग्ला भाषा है द्रौपदी, शुद्ध हमार बांग्ला भाषा है आसामी, मराठी, पाली, ध्रुपदी भाषा मर्यादा जो दिया था क्या एकमात्र देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सबका देश का विकास होता है और मुमकिन है तो मोदी है, मुमकिन है तो मोदी है, मुमकिन है तो मोदी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामदास अठावले। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उच्च हाउस में, अपर हाउस में, राज्यसभा में चर्चा हो रही है। एक तो अपने देश को बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचाना है। देश को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए वैसा विजन चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पास विजन नहीं था, कांग्रेस पार्टी के पास मिशन नहीं था, कांग्रेस पार्टी के पास खाली भ्रष्टाचार था। कांग्रेस पार्टी खाली भ्रष्टाचार का काम हमेशा करती रही। गरीबी हटाओ का नारा तो दे दिया, लेकिन गरीबों को हटाने का काम किया। मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के ऊपर लाया है। मोदी जी हमेशा संविधान की बात करते हैं। संविधान बदला जाएगा इसी तरह की अफवाह बकवास किया जाता है। कांग्रेस पार्टी बकवास करने में बहुत आगे है। संविधान किसी के बाप का बाप जाएगा तो संविधान बदल नहीं सकता है। मोदी जी ने संविधान को माथा टेकर शपथ ली है। मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर जी को हमेशा अभिवादन करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी के सभी मेमोरियल काम उनके कार्यकाल में पूरे हुए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था, बहुत बार मंत्रियों को मिला, लेकिन मुझे भी इन्होंने मंत्री नहीं बनाया, इसीलिए मुझे मंत्रियों को मिलना पड़ता था। लेकिन बाबा साहब के स्मारक के काम पूरे नहीं हुए। 26 अलीपुर रोड हो, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो बना इधर सामने है, तो ऐसे काम पूरे हुए नहीं। मुंबई में मोदी साहब ने 3600 करोड़ की एनटीसी की जमीन 1 मिनट में, देवेंद्र फडणवीस और मैं उनको मिलने के लिए गया और बाबा साहब के मेमोरियल के लिए एनटीसी की हिंदू मिल की जमीन 3600 करोड़ की थी और अभी 1200-1300 करोड़ का वहां काम हो रहा है। 1-1.5 साल के अंदर मोदी जी के हाथ से इसका लोकार्पण होगा।
ये कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि भाई मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मैं बोला वो बनेंगे, तो बोले कि नहीं बनेंगे, तो मतलब ये लोगों ने ऐसा किया। ये लोकसभा के चुनाव में संविधान बदलेगा, आरक्षण जाएगा, और मोदी जी हटाने के लिए सब लोग एक साथ आए, लेकिन अभी अलग अलग हो गए। और तुम अलग हो गए, अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नहीं आ सकती है क्या? आने वाले रमेश जी? तो ठीक बात है, आते तो आइए, मतलब आप अगर ज्यादा इकट्ठा आते हैं तो हमें खुशी है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। मैं मोदी जी के हिसाब के साथ हूँ, मैं इधर से हटने वाला नहीं हूँ। जब तक मैं तुमको हटाता नहीं तब तक मैं इधर से हटने वाला नहीं हूँ। इसीलिए ठीक बात है, तो इसीलिए लोकतंत्र में सबको अधिकार है। और इसलिए राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण ने सारे देश को जगा दिया है। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण ने सारे देश को जगा दिया है, लेकिन कांग्रेस ने 75 सालों में जनता को धोखा, लेकिन कांग्रेस ने 75 सालों में सारे जनता को दगा दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार को भगा दिया है। मोदी साहब ने भ्रष्टाचार को भगा दिया है, और हम सभी मंत्रियों को काम पे भी लगा दिया है। नरेंद्र मोदी जी दे रहे सभी को सामाजिक न्याय, नरेंद्र मोदी जी दे रहे सबको सामाजिक न्याय, तो विपक्षी दल बोलता है हाय हाय। इसलिए अपोजिशन को लोकसभा के चुनाव में जनता ने ही किया है बाय बाय। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और विपक्षी दलों को ही किया है बाय बाय। अब नरेंद्र मोदी जी सारे देश को दे रहे हैं आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय देने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हम सब लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत करना है। माननीय मोदी साहब ने लोकसभा में किसी पर ज्यादा टीका टिप्पणी ना करते हुए सभी लोगों को अपील किया है कि आप हमारे साथ आइए। हमारे साथ आइए मतलब आपकी पार्टी छोड़कर मत आइए, मतलब हमारे साथ देश के विकास के लिए, देश को मजबूत करने के लिए अध्यक्ष महोदय सभी लोगों ने एक साथ रहना है। लोकतंत्र में आप कभी इधर थे, आप कभी इधर थे, ऐसा होते रहता है। ये लोग तो यहाँ बैठने वाले लोग इतने सालों में उधर ही थे, अभी इधर आए हैं, लेकिन अभी इधर 25-30 साल हटे ही नहीं। आप 75 साल तक उधर रहे। तो इसीलिए लोकतंत्र में जनता के साथ हम काम करते हैं, और इसीलिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है ये सामाजिक न्याय देने वाला है, आर्थिक न्याय देने वाला है। महिला है, युवा है, महिला है, किसान है, दलित है, आदिवासी है, कांग्रेस है, आप है, सब पार्टी के लोगों को, जनता को न्याय देने का हमारा मकसद है। धन्यवाद। आपको न्याय देना है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अभी जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है। मैं इस पार्टी से मैं अकेला हूँ, लेकिन आज मैं अकेला हूँ, लेकिन कल मैं मेरे लोग बढ़ सकते हैं। और इसीलिए मैं मेरे पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जो है इसमें उन्होंने बाबा साहब को भी नमन किया है, और उसके साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे यहाँ नहीं थे, लेकिन हमारे देश के थे, हमारे प्रधानमंत्री थे, आदरणीय थे, और इसीलिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसीलिए मैं इस अभिभाषण का पूरा सपोर्ट करता हूँ। पार्टी की तरफ से मैं सरकार के साथ हूँ, और मैं धन्यवाद। जब तक मोदी साहब है तब तक इनके साथ रहूंगा, बाद में मैं विचार करूंगा। धन्यवाद। श्री कार्तिकेय शर्मा। समय का सब ध्यान रखे माननीय सदस्य, 4 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, तो समय की सीमा। धन्यवाद उपसभापति, माननीय उपसभापति जी। आज यहाँ खड़े होकर माननीय राष्ट्रपति जी के प्रेरणादायक और दूरदर्शी अभिभाषण के लिए अपना आभार व्यक्त करना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की का एक मजबूत रोड मैप और महत्वाकांक्षी योजना थी। मैं अपने बात साहिर लुधियानवी के एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ। 1000 बिजली गिरे, लाख आंधियां उठे, जो फूल खिलने वाले हैं वो खिलके ही रहेंगे। ये अभिभाषण एक सशक्त, विकसित और आत्मनिर्भर भारत
की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, वर्तमान उपलब्धियां और उज्जवल भविष्य की झलक प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति जी का यह भाषण मेरे लिए भारत के बढ़ते साहस और सामर्थ्य का प्रतीक है। साहसी भारत, मजबूत नेतृत्व, प्रभावी कूटनीति का परिणाम है कि आज भारत एक साहसी राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी कूटनीति ने नए आयाम स्थापित किए हैं। G20 की सफल मेजबानी, चाहे क्वाड की बात करें, ब्रिक्स समिट की बात करें, SCO की प्रभावी समिट की बात करें, भूमिका जो रही भारत की, आज वैश्विक दक्षिण के अंदर यानी कि ग्लोबल साउथ में की आवाज बनने में भारत एक बहुत बड़ी बुलंद आवाज बन के पूरे विश्व मंच पे स्थापित हुआ है। मैं एक बात और रखना चाहता हूं, आज मोदी जी को छोड़कर आज दुनिया में कोई भी ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा नहीं है जिसे 16 देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो। ये सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए सम्मान की बात नहीं है, ये पूरे देश के लिए, सारे देशवासियों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, उनके लिए भी सम्मान की बात है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के तहत हमारी रक्षा क्षमताएं भी मजबूत हुई हैं। 2004 से 14 तक यूपीए के कार्यकाल के अंदर डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 4,312 करोड़ रुपए का था, लेकिन 2004 से 24 तक 1900% बढ़ोतरी आई है इसके अंदर और 88,319 करोड़ का भी हो गया है। अब हम न केवल अपने लिए बल्कि विश्व के लिए भी रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने शामिल हुए स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियों का भी इसका प्रमाण मिलता है। सक्षम भारत, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास, ये मूल मंत्र रहे हैं और जिसके ऊपर राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को भारत की प्रगति का आधार बताया है। भारत में आज विकास की परिभाषा केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के सशक्तिकरण तक विस्तृत है। गरीबों का उत्थान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए मकानों की घोषणा, 25 करोड़ लोगों को का गरीबी की लेखा से बाहर निकलना और 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन जैसी योजनाएं सामाजिक न्याय का परिणाम है। महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उस सरकार का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि जो एजेंट ऑफ चेंज है वो महिलाएं हैं और देश की जो आधी आबादी है कि अगर हम उनके अंदर बदलाव ला सकते हैं, अगर हम क्रांति लाना चाहते हैं कि समाज के अंदर, तो उसका रास्ता महिलाओं के द्वारा जाता है। इसलिए हमें महिलाओं को सशक्त करना है, सक्षम बनाना है, सामर्थ्य बनाना है। इसीलिए चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात हो, लखपति दीदी की बात हो, द्रोण दीदी की बात हो या उनके खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत बात हो। मैं युवाओं के लिए भी अवसरों की बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री युवा योजना, स्टार्टअप इंडिया और इंडिया डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश में 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं और 10 लाख सरकारी नौकरियों का भी सृजन किया गया है। सर, 1984 में देश के 404 सीटें आई थी और एक हिस्टोरिक मैंडेट मिला था एक युवा प्रधानमंत्री को। देश को बहुत उम्मीदें थी कि एक संचार क्रांति आएगी, बहुत बदलाव आएगा, कि दुनिया एक ऐसे मौके पे खड़ी थी जहां पर बदलाव आ रहा था, ओपन हो रही थी इकोनॉमीज। शायद कहीं ना कहीं कुछ कमियों की वजह से वो चूक रह गई और वो मौका भारत ने खो दिया। आज मैं इस बात का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि 404 और बाद में 414 सीटों के बाद भी आपको राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है बदलाव लाने के लिए, और वो इच्छा शक्ति का उदाहरण सबसे अच्छा 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत किया, जो 303 सीटों के साथ भी जो अमूलचूल परिवर्तन उनको करना था सरकार को, चाहे अनुच्छेद 370 की बात करूं, 3 तलाक की बात करूं या सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की बात करूं, उन्होंने सब राजनीतिक इच्छा शक्ति द्वारा दिखाया और प्रस्तुत किया कि ये हो सकता है अगर आप चाहें करना। तो मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं, मैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो 2047 का विकसित भारत का सपना माननीय मोदी जी ने देखा है, वो सिर्फ उनका सपना नहीं है, हर एक भारतवासी का सपना है। वो पक्ष का विपक्ष का
हर एक सांसद का सपना होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसके अंदर कोई विरोधाभास होना चाहिए कि 2047 तक भारत एक विकसित देश के तौर पर, सफल देश के तौर पर काबिज हो सके, ये हर एक भारतवासी की सोच होनी चाहिए। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं इस अभिभाषण का भी के समर्थन में खड़ा हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद कार्तिकेय जी। श्री महाराजा संजा ओबा लेसंबा। Thank you, sir, for giving me this opportunity, sir. Sir, I rise to speak in support of the motion of thanks on the Honorable President, Srimati Draupadi Murmu address. Sir, achievement in America in the third term of our government, led by Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, the speed of development has also increased by 3 times. The poor, women, children, youth, and farmers are put at top priority. Our government has allocated rupees 5,36,000 crore for providing an additional of 3 crore households under Prime Minister Awas Yojana. Our government is committed to grant ownership rights of residential land to the rural poor and promoting financial inclusion under Sambhamitha scheme. 2.45 crores property cards have been issued so far, and under PM Kisan Samman Nidhi scheme, crores of farmers have received an amount totaling to rupees 41,000 crore for the upliftment of tribal communities. Dhati Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan has been started for peace. Rupees 80,000 crore has been allotted, and under Ayushman Bharat Yojana, 6 crore people above the age of 70 years will be given free health insurance, and a health cover of rupees 5 lakh will be provided annually. For small entrepreneurs, the limit of Mudra loan has been increased from 10 lakh to 20 lakhs. Our government has focused on education and employment opportunities for the youth. Under PM Vidya Lakshmi scheme, our 1 crore youth will be provided with internship employment opportunity in the top 500 companies. Celebrating the 100th birth anniversary of Atalji, our government has allotted rupees 70,000 crores to connect 25,000 habitation across villages under the 4th phase of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Today, 71 Vande Bharat, Namo Bharat, and Amrit Bharat trains are running across the country. And in the last 6 months alone, 17 new Vande Bharat and 1 Namo Bharat trains have been added. Our government, under the leadership of Sri Narendra Modi ji, has also made swift progress on critical issues like One Nation, One Election, and Workup Act Amendment, etc. Sir, welfare of middle class, owing to the great efforts of our government, our Bharat is going to become third biggest economy in the world. The only goals of our government's mantra, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and Sabka Prayas, is the development of Viksit Bharat. Under Swachh Bharat Abhiyan, 12 crores toilets have been constructed. Under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, 10 crores free LPG have been connected. 80 crores people have been provided for food grains. Saubhagya Yojana and Jal Jeevan Mission have given the assurance to the poor that they can live with dignity. Under Udan scheme, the dreams of 1.5 crores people to fly in airplanes has been fulfilled, and offering of medicines at 80% concessional rates have helped save more than rupees 30,000 crores for citizens under Janna Aushadhi Kendras. Employment through women-led development. Our government is committed to fostering women-led development to realize the fullest potential of the country. Nari Shakti Bandhan Adhiniyam, reservation of women in Lok Sabha and Rajya Sabha, is an important step in this direction. Under National Rural Livelihood Mission, more than 91 self-help groups of more than 10 crores women are being empowered. The goals of our government is to make 3 crore Lakpati Didi, and today more than 1.15 crores Lakpati Didi are living their lives with dignity, and they are contributing to the incomes of their family as entrepreneurs. Drone Didi Yojana has been instrumental in empowering our women both economically and technically. Our daughters are flying fighter jets,
They are joining the armed forces and leading corporate companies. Owing to the bold decisions of Sri Narendra Modi's government, our women are being admitted to National Military School and National Defense Academy. This is a matter of pride for this house and the country. Daughters of these nations are